So, good morning to everyone. Today we will see the topic of the today we will see the topic about the selective repeat ARQ. Now we have in previous classes we have seen the two types of the automatic repeat request. This is the third type of the automatic repeat request. That is the selective repeat ARQ. The two types we have seen are the stop and wait ARQ and the go back in ARQ. Now, if you remind that in go back in ARQ, whatever the sliding window size in the sender side sliding window size is n, and in the receiving side, the sliding window size is 1. We have seen that. But the main problem happens that in receiving side, only one frame can be processed because there the sliding window size is 1. So for sliding window size is 1, only one frame can be processed at that time. So if any frame is lost, or the frame is damaged, or the frame's acknowledgement is not received in the sender side, then what? In go back in ARQ, we have seen that from the last acknowledgement received, from that position, all the frames are retransmitted again. मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले कि हम लोगों का सेंडर साइड में क्या था, सेंडर साइड में स्लाइडिंग विंडो इन साइज का था, रिसीविंग साइड में हम लोगों का स्लाइडिंग विंडो साइज 1 है. तो 1 मीन्स क्या है, एट ए टाइम 1 फ्रेम को प्रोसेस कर सकते हैं रिसीवर साइड में. बट जब लॉस्ट फ्रेम या डैमेज फ्रेम और द फ्रेम्स एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव्ड बाय द सेंडर, in that condition, what will happen? In that condition, all the frames you have seen in the go back in ARQ, that first all the frames are sent, and if there is a problem happen, that if we consider this as an example, that in first
frame F0 is transmitted in the receiver side. So it is correctly received by the receiver. So okay, it will send the, and then at a meantime, frame 1 that is also received by the receiver. So this is also correctly received by the receiver. So acknowledgement will be sent from the receiver to sender. That acknowledgement of frame 1 and acknowledgement of frame 0, both will be sent to the sender. So the sender will know that all the frames are what? All the frames are correctly received by the receiver. That's why it sends the positive acknowledgement. But in case of third frame, that is frame 2, in that case, what will happen? That in frame 2, it is sent by the sender to the receiver side. But receiver also send, the receiver also send the acknowledgement, but at the meantime, it is lost in the midway. So for each frame, a timer is attached. Of each frame, a timer is attached with them. What we have seen, that a timer is attached with this frame. So sender will wait for a time period. And if it is not received the acknowledgement, then sender will think that there's maybe some problems happen. So it will what? In go back in ARQ, the frames will be again retransmitted from frame 2. That's why if frame 3 or frame 4, these are already received by the receiver, it will be discarded. And again, the retransmission of the same frame will be started from frame 2, frame 3, frame 4. So retransmission should occur. But it makes less efficient for this, because same frames are again transmitted. At frame 3 or frame 4, there is no error. It is received by the receiver correctly. But there is a problem in frame 2, and its acknowledgement is not received by the sender. So what will happen? F3 or F4, irrespective, it is received by the receiver, but it will be discarded. And again, the retransmissions will be started from frame 2. That means frame 2, frame 3, frame 4. It will be again retransmitted. So this is the concept of the go back in ARQ. So that means what? The retransmissions occurred, and it make it what? It is less efficient. It make the less efficient of it. So we uses this technique, selective repeat ARQ. And in this method, this is the third type, selective repeat ARQ. And in this method, only the specific damaged or the lost frame is retransmitted. Means where the problem happened, only that frame is transmitted. But in go back in ARQ, what we have seen, that from where the problems happens, after that, all the frames are transmitted. But in case of selective repeat ARQ, only the specific damaged or the lost frame is retransmitted. And here, the sending window size and the receiving window size, both are of greater than 1. In go back in ARQ, we have seen in the receiving window size is 1. We have seen. But in case of selective repeat ARQ, the sender window size, and the receiver window size, both are what? Both are equal, and it would be greater than 1. And in this receiving window, there will be a buffer storage. There will be a buffer storage in the receiving side. So what? If it will be greater than 1, so that means what? More than 1 frame can be processed at that time. Clear? It is clear to everyone? Yes, sir. Okay. तो अभी हम लोग देखेंगे. ओके. तो अभी हम लोग जो नॉर्मल कैसे ट्रांसमिशंस होता है, हम लोग सिलेक्टिव रिपीट ARQ सिस्टम्स में वो देखेंगे. देखो, सेम एज दैट, इधर एक सेंडर है और इधर एक रिसीवर है. तो सेंडर के पास भी क्या होगा? सेंडर के पास भी सीक्वेंस नंबर, फ्रेम सीक्वेंस नंबर, एज ए सीक्वेंस नंबर फ्रेम्स प्रेजेंट होगा. सेम एज दैट रिसीवर के पास भी क्या होगा? सेम सीक्वेंस नंबर का फ्रेम प्रेजेंट होगा. मींस सेंडर एंड रिसीवर दोनों का पास में सेम सीक्वेंस नंबर ऑफ फ्रेम्स प्रेजेंट होगा. और इसका जो ऑर्डर्स है,
वो दोनों का ही सेम रहेगा। जैसे रिसीविंग साइड में भी 0 1 2 3 4 है, सेंडर साइड में भी क्या होगा 0 1 2 3 4, यही सीक्वेंस हम लोगों का रहेगा। तो अब क्या है इसमें देखो, इसमें हम लोगों का बोला है कि विंडो साइज क्या है ग्रेटर देन 1। तो इसमें क्या है कि सेंडर साइज में जो विंडो साइज है, रिसीवर साइड में भी क्या होगा ऐसे सेम विंडो साइज प्रेजेंट रहेगा। और ये क्या है कि रिसीविंग साइड में एक बफर स्टोरेज है, तो इससे ऐसे एक बफर स्टोरेज रहेगा जिसमें फ्रेम्स, ऐसे फ्रेम्स प्रेजेंट रहेगा, फ्रेम्स का सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगा 0 1 2 3 एंड 4 ऐसे सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो अभी देखो हम लोग का ट्रांसमिशन स्टार्ट हो रहा है कि हम लोग का जो फर्स्ट फ्रेम है, फर्स्ट फ्रेम है फ्रेम 0। सो फ्रेम 0 इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो फ्रेम 0 जो है वो सेंडर से रिसीवर को सेंड कर गया, तो रिसीवर क्या है फ्रेम 0 को करेक्टली रिसीव किया। तो फ्रेम 0 को जब भी वो करेक्टली रिसीव करेगा, वो क्या करेगा कि उसके पास फ्रेम 0 आया, तो ऐसे वो क्या करेगा मार्क कर देगा कि मेरे पास फ्रेम 0 आ गया है। ओके, देन नेक्स्ट फ्रेम, फ्रेम 1 इज ऑल्सो सेंड। सो सेंडर से रिसीवर के पास फ्रेम 1 जब भी सेंड होगा, सेंडर से रिसीवर के पास जब भी फ्रेम 1 सेंड हुआ, तो रिसीवर फ्रेम 1 को रिसीव किए, और रिसीव करने के साथ ही वो क्या किया इसको मार्क कर दिया कि मेरा ऑलरेडी फ्रेम 1 आ चुका है। और दोनों को क्या है, दोनों का ही फ्रेम 0 और फ्रेम 1 दोनों का ही एक्नॉलेजमेंट क्या किया, वो फिर सेंड कर दिया रिसीवर कि यस इट्स ओके दैट फ्रेम 0 and frame 1 is received. So sender will now understand that these frames are already correctly received by the receiver, because receiver send a positive acknowledgement. Receiver is sending the positive acknowledgement of frame 0 and frame 1. So that means sender will now understand that the frame 0 and frame 1 is correctly received. Now at a moment, at a time, frame 2 will again, next frame 2 will be sent. So frame 2 को भी वो क्या किए, sender receiver को send किए, and वो क्या किए फ्रेम 2 को रिसीवर साइड ना उसको मार्क कर लिए कि फ्रेम 2 उसके पास आ गया, तो ओके करेक्टली उसको रिसीव्ड हो गया। बट फ्रेम 2 का जो एक्नॉलेजमेंट था, वो रिसीवर जब उस फ्रेम 2 का एक्नॉलेजमेंट सेंड करने गए, तो मिड वे, ट्रांसमिशन का मिड वे में वो एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया। तो अभी क्या है, हम लोग का फ्रेम्स जो है, फ्रेम्स के साथ एक टाइमर अटैच्ड होता है। उस टाइमर जो है, उस टाइम पीरियड के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर हम लोगों को क्या है, उस टाइम पीरियड के अंदर मेरा एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए। सेंडर वेट करते हैं कि उस टाइम पीरियड जो ईच फ्रेम के साथ अटैच्ड है, उसके अंदर एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड होना चाहिए। तो फ्रेम 2 का भी क्या है, टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर सेंडर क्या करेगा, सेंडर वेट करेगा कि उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड हो, क्या फ्रेम 2 का एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड होता है क्या नहीं। बट वो क्या है कि एक्नॉलेजमेंट 2 जो था वो लॉस्ट हो गया मिड वे में। तो अभी क्या होगा, ऐसे सेंडर से क्या होगा, सेंडर से फ्रेम आते ही रहेगा, सेंडर से फ्रेम 3 रिसीव्ड, सेंडर क्या किया ऐसे मीन टाइम फ्रेम 3 भी सेंड कर दिया और फ्रेम 4 दोनों को सेंड कर दिया। तो रिसीवर वो क्या किया कि उसके पास फ्रेम 3 और फ्रेम 4 दोनों ही रिसीव्ड हो गया। बट सेंडर देखा कि एक टाइम पीरियड तक वेट करने के बाद उसको फ्रेम 2 का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, फिर फ्रेम 2 का ही सिर्फ सिर्फ फ्रेम 2 का एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, सॉरी नॉट एक्नॉलेजमेंट, फ्रेम 2 जो है फ्रेम 2 का रिट्रांसमिशन करेगा। बट यही अगर हम लोग गो बैक इन ARQ में करते, तो फिर फ्रेम 2, फ्रेम 3 एंड फ्रेम 4 ऑल आर रिट्रांसमिटेड। फ्रेम 3 और फ्रेम 4 जो था, ये रिसीवर के पास ऑलरेडी प्रेजेंट है अभी, मतलब उसके पास आ चुका है। तो तब भी क्या था कि गो बैक इन ARQ में उस फ्रेम 3 और फ्रेम 4 जो रिसीवर के पास आ गया था, उसको डिस्कट कर देते थे हम लोग, अगेन रिट्रांसमिशन स्टार्टेड फ्रॉम फ्रेम 2। so frame 2, frame 3, frame 4, again it will be retransmitted. But in that case, in the selective repeat ARQ, इसमें क्या होगा कि जिस फ्रेम में ऑलरेडी जिस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ, उस फ्रेम के लिए वही फ्रेम सिर्फ रिट्रांसमिशन होगा, बाकी फ्रेम जिसका एक्नॉलेजमेंट मिल गया उसका रिट्रांसमिशन करने का कोई जरूरत नहीं। यही हम लोग का सिलेक्टिव रिपीट ARQ है।
और इसमें क्या होगा, तब एक बफर स्टोरेज में तो 0 पैकेट रिसीव्ड हो गया तो वो क्या करेगा, 0 को इसमें स्टोर कर देगा। देन 1 पैकेट जो था, 1 पैकेट का भी रिसीव्ड हो गया तो वो बफर में स्टोर कर देगा। बट 2 का जो है, 2 का एक्नॉलेजमेंट क्या हुआ, 2 का एक्नॉलेजमेंट मेरा मिडवे में लॉस्ट हो गया। तो 2 पैकेट वो क्या है, 2 पैकेट का कोई वो स्टोरेज नहीं करेगा, क्योंकि उसका क्या है, उसको तो एक्नॉलेजमेंट तो सेंड किए थे बट मिडवे में लॉस्ट हो गया। तो अभी क्या है, 2 पैकेज का 2 फ्रेम्स जो है, 2 फ्रेम्स का कुछ नहीं होगा। तो अगेन फ्रेम 3 और फ्रेम 4 ये दोनों को रिसीव कर लिए, इसीलिए इसको स्टोर कर लेगा। एंड देन फ्रेम 2 अगेन इट विल बी रिट्रांसमिटेड, और उसके बाद क्या होगा, हम लोग जो 2 उसको रिसीव करेगा और उसके लिए बफर में स्टोर करेगा। तो ऐसे क्या हुआ, देखो हम लोगों का जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस जो है, हम लोग का सीक्वेंस क्या होना चाहिए था, 0 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में फ्रेम को रिसीव करने चाहिए था। बट फ्रेम 2 का जो था एक्नॉलेजमेंट तो मिडवे में लॉस्ट होने के कारण फ्रेम 2 का बाद में रिट्रांसमिशन हुआ, और बाद में रिट्रांसमिशन के कारण क्या हुआ, सीक्वेंस जो था, सीक्वेंस मेरा चेंज हो गया। तो इसमें क्या होगा, अभी रिसीवर के साइड एक लॉजिक होता है, सॉर्टिंग टेक्निक्स दैट कैन बी अप्लाइड टू सिंक्रोनाइज द फ्रेम। ये हम लोगों का सिलेक्टिव रिपीट ARQ में है कि उसके पास एक सॉर्टिंग टेक्निक्स होता है जिसको अप्लाई करके और फ्रेम को क्या होगा, फ्रेम को फिर से सिंक्रोनाइज कर देगा। तो यही हम लोगों का सिलेक्टिव रिपीट ARQ, सिलेक्टिव रिपीट ARQ प्रोसेस है। ओके, क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो ये हम लोग का सिलेक्टिव रिपीट ARQ का प्रोसेस है। तो हम लोग अगर इसका डिफरेंस देखें, हम लोग अगर इसका डिफरेंस देखें गो बैक एन ARQ के साथ, तो डिफरेंस बिटवीन गो बैक एन एंड सिलेक्टिव रिपीट ARQ, इसका देखो, इसका क्या है कि गो बैक एन में हम लोग का इट रिट्रांसमिट n number of frames, it retransmit n number of frames in case of any error। इसमें क्या है कि वो n number of frames को रिट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि फ्रेम 2 में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो इसलिए क्या है कि बाकी जितना फ्रेम्स है वो रिसीवर के पास आ भी चुके थे, तब भी क्या होगा, उसको क्या करेगा, डिस्कट कर देगा, डिस्कट करके फिर फ्रेम 2 से रिट्रांसमिशन होगा। मींस frame 2, frame 3, frame 4 will again be retransmitted in case of go back in ARQ। but selective repeat ARQ में क्या है कि it retransmit only those frames that have problem। means अगर जिस फ्रेम में मेरा प्रॉब्लम हुआ है तो फ्रेम 2 में शायद मेरा प्रॉब्लम हुआ है, ओनली फ्रेम 2 ही हम लोग रिट्रांसमिट करेंगे, बाकी जो फ्रेम्स था उसको रिट्रांसमिट करने का जरूरत नहीं है। तो यही सिलेक्टिव, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों का, is selective repeat ARQ and go back in ARQ में। then उसके बाद देखो the error rate is high and it wastes lot of bandwidth। इसमें क्या है, एरर रेट हाई है, अगर एरर रेट हाई हो जाएगा मतलब मानो कि फ्रेम 0 देन फ्रेम 1 फ्रेम 2 सेंड किए, देन फ्रेम 3 सेंड किए, तो फ्रेम 3 में प्रॉब्लम आया। एंड इधर क्या है, टोटल हम लोग के पास, हम लोग मानते हैं कि 500 हम लोग का फ्रेम्स प्रेजेंट है। तो फ्रेम 0 ठीक से गया, फ्रेम 1 भी ठीक से गया, फ्रेम 2 भी गया, फ्रेम 3 में प्रॉब्लम आया। तो फ्रेम 3 में प्रॉब्लम आने के कारण क्या करना होगा, अगेन द फ्रेम 3, और उसके एट ए टाइम क्या है, फ्रेम 4 मेरा रिसीव हो चुका है, बट हम लोग का क्या करेगा, सेंडर फिर से रिट्रांसमिशन करेगा फ्रेम 3 और फ्रेम 4 को, और पिछले जो फ्रेम 4 मेरा रिसीवर के पास पहुंचा गया था उसको डिस्कट कर देगा। तो ऐसा क्या है कि जब हम लोग नंबर ऑफ फ्रेम्स को इंक्रीज करेगा या नंबर ऑफ एरर जब बढ़ते जाएगा, तब क्या है, इसलिए मेरा लॉट ऑफ बैंडविड्थ वेस्ट होगा, क्योंकि बार बार रिट्रांसमिशन हम करेंगे, और बार बार वेस्टेज है कि जिसका हम लोग क्या है कि जिस पोजीशन से वो प्रॉब्लम अराइज हुआ उस पोजीशन के बाद से जितना मेरा फ्रेम्स है, सब फ्रेम्स अगर ठीक से पहुंचा भी गया तब भी हम लोग क्या है उसको फिर से नेक्स्ट उसको रिट्रांसमिशन करेंगे। तो ये क्या है, ये तो डैमेज्ड है या हम लोग वेस्ट कर रहे हैं ना।
तो एक ही चीज को हम लोग बार बार सेंड कर रहे हैं। तो यही चीज के लिए हम लोग का गो बैक एन में क्या है कि एरर रेट इज हाई। अगर बहुत सारा एरर हो गया तो इसमें क्या है कि बार बार रिट्रांसमिशन करने की वजह से बैंडविड्थ का वेस्टेज होता है। एंड सिलेक्टिव रिपीट ARQ में क्या है, लेस वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ। क्यों? इसमें क्या है कि only that frame should be retransmitted which have a problem, that frame had to be retransmitted। तो इसमें क्या है, लेस वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ। तो इसीलिए क्या है कि इसमें हम लोग सिलेक्टिव रिपीट ARQ में हम लोगों का बैंडविड्थ जो है, बैंडविड्थ लो होता है। क्यों? ओनली दैट फ्रेम कैन बी रिट्रांसमिटेड इन व्हिच इट हैज अ प्रॉब्लम। एंड third is what? It is less complicated because it doesn't have to track which frame should be retransmitted or the position from the particular frame. Negative acknowledgement, NACK negative acknowledgement is received from after that all frames are retransmitted। अब इसमें देखो क्या है कि गो बैक इन ARQ क्या है, हम लोग का लेस कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों लेस कॉम्प्लिकेटेड है? कि इसमें कोई ट्रैक रखने की जरूरत नहीं है कि मेरा कौन सा फ्रेम लॉस्ट हुआ है या नहीं। इसमें क्या है, सेंडर के पास जिसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा उसका उसके बाद से सारा जो फ्रेम्स है सबको सेंड करेगा, सबको रिट्रांसमिट करेगा। कि वो पहुंचा है रिसीवर के पास या नहीं वो मुझे जानना नहीं है, बट दैट फ्रॉम दैट पोजीशन, उस पोजीशन का जो फ्रेम्स था उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, दैट मींस फ्रॉम दैट पोजीशन ऑल द फ्रेम्स विल बी रिट्रांसमिट। तो इसमें क्या है, हम लोग का जो सेंडर के पास कोई ट्रैक रखने का जरूरत नहीं है कि उसके पास जो देखा कि उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो मतलब क्या है, उसके बाद से फिर जितना फ्रेम से सबको फिर रिट्रांसमिट करो। तो इसमें क्या है, ट्रैक रखने का कोई जरूरत नहीं है। और बट सिलेक्टिव रिपीट ARQ में क्या है, सिलेक्टिव रिपीट ARQ में तो ऐसे प्रोसेस नहीं है कि जहां जिस पोजीशन से मतलब एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ उस पोजीशन से सारा जो जितना मेरा फ्रेम्स है सबको रिट्रांसमिट करो, ऐसे तो नहीं है। उसको क्या है, उसको ट्रैक रखना है कि कौन सा फ्रेम जो है उसके लिए एक्नॉलेजमेंट नहीं रहेगा, उसको ही सिर्फ हम रिट्रांसमिट करेंगे। तो ये क्या है, ये मोर कॉम्प्लेक्स है। और इसमें क्या है, एक्स्ट्रा लॉजिक होता है, एक्स्ट्रा लॉजिक फॉर सॉर्टिंग एंड स्टोरेज पर्पस, एक्स्ट्रा लॉजिक फॉर स्टोरिंग एंड स्टोरेज पर्पस टू रीसिंक्रोनाइज ऑल फ्रेम। इसमें देखा कि हम लोग का एक स्टोरेज होता है। अब स्टोरेज में क्या होगा, स्टोरेज में एक के बाद एक फ्रेम जब रिसीव्ड होगा वो फ्रेम उधर रहेगा, बट एनी पोजीशन जो है उस पोजीशंस में हम लोगों का फ्रेम्स जो है उस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव्ड हुआ तो वो क्या करेगा, उस पोजीशंस को अभी क्या होगा, खाली रहेगा। तो फिर बाद में क्या होगा, उस फ्रेम को जब रिट्रांसमिट करेंगे वो फ्रेम क्या होगा, जैसे हम देखें कि जो फ्रेम 2 था, जो फ्रेम मेरा क्या था, ये 2 था, ये 2 का रिट्रांसमिशन हुआ था, ये फ्रेम 2 का रिट्रांसमिशन होकर बाद में आया। बट ये 2 का पोजीशन क्या होना चाहिए था, 2 तो इधर आना चाहिए था, रिसीव्ड होना चाहिए था। तो इसमें क्या होगा, ऐसे जब होगा तब हम लोग का सॉर्टिंग टेक्निक्स अप्लाइड होगा, एक सॉर्टिंग टेक्निक्स अप्लाइड होगा। उस सॉर्टिंग टेक्निक से क्या होगा, फ्रेम का सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा रिसीवर साइड में। तो इसमें क्या है कि अगर सीक्वेंस नंबर वाइज मेरा फ्रेम्स नहीं भी आया तो सॉर्टिंग टेक्निक्स जो है, जो एक इम्प्लीमेंट लॉजिक है, उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके क्या करेंगे हम लोग उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके रिसीवर साइड में हम लोग का क्या होगा, फ्रेम्स का जो रिसीविंग ऑल द फ्रेम्स, रिसिंक्रोनाइजेशन ऑफ द ऑल फ्रेम्स कैन बी डन एंड सॉर्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। इधर गो बैक इन ARQ में तो ऐसे कुछ सॉर्टिंग्स हम लोगों का नहीं है, बट इसमें सिलेक्टिव रिपीट में क्या है, सिलेक्टिव रिपीट ARQ में अब देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो मुझे सॉर्टिंग करने का सिंक्रोनसली पैकेट रिसीव्ड होगा और उसमें क्या है, मेरा कोई ऐसे सॉर्टिंग का जरूरत नहीं है। बट अगर प्रॉब्लम होगा तो हम लोग क्या है, हम लोग उसको ऐसे सिंक्रोनाइज वे में उसको रखेंगे। तो सिलेक्टिव रिपीट में क्या है कि मे और मे नॉट रिक्वायर्ड। तो ये क्या है, सॉर्टिंग जो है, सॉर्टिंग हो भी सकते हैं नहीं भी लग सकते हैं।
ये डिपेंड करते हैं उसके ऊपर। तो इसलिए क्या है, गो बैक एनएआरक्यू में तो नहीं लगेगा, बट सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू में क्या है कि मे और मे नॉट रिक्वायर्ड, लग भी सकते हैं, नहीं भी लग सकते हैं, ठीक है। और ये जो गो बैक इन एआरक्यू, ये गो बैक इन एआरक्यू आर मोस्टली ऑफन यूज्ड। ये गो बैक जो मोस्ट हम लोग जो ऑफन यूज जो होता है, हम लोग जानते हैं इसका प्रॉब्लम जो है कि रिट्रांसमिशन हो रहा है, जिस पोजीशन से प्रॉब्लम होगा उस पोजीशन से सारा पैकेट को फिर रिट्रांसमिट करेगा, हम लोग जानते हैं। बट मोस्ट ऑफन क्या है, इसको ही हम लोग यूज करते हैं। एंड बट सिलेक्टिव एआरक्यू क्या है कि ये कम यूज होता है, क्योंकि इसका लेस क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्सिटी जो है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। क्योंकि एक क्या होगा, मुझे ट्रैक करने के लिए एक लॉजिक लगाना होगा, फिर ये जो है सॉर्टिंग और स्टोरेज के लिए एक लॉजिक लगाना होगा, एंड देन इसका कॉस्ट क्या होगा, इसे करते करते मेरा कॉस्ट बढ़ भी जाएगा। बट इधर क्या है, गो बैक एनएआरक्यू में हम लोगों का कोई ऐसे ट्रैक लगाने का जरूरत नहीं है, और कोई एक्स्ट्रा लॉजिक भी क्या है, एक्स्ट्रा लॉजिक का भी कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए क्या है, हम लोग का मोस्ट ऑफन यूज होता है ये गो बैक इन एआरक्यू। बट हम लोगों का जो सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू है, ये हम लोग का लेस यूज्ड होता है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स मोर कॉम्प्लेक्सिटी। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ गो बैक इन एआरक्यू एंड सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू। Okay, so these are the three types of the ARQ which we have seen: stop and wait ARQ, go back in ARQ, and selective repeat ARQ. Okay, Yes, sir. प्रीति, उज्जवल, क्लियर है सबका? यस सर। Yes, sir. तो यही हम लोग का ARQ जो था, ARQ टॉपिक था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक हम एक ये बेसिक्स जो है नेक्स्ट टॉपिक का, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मल्टीटास्किंग, वो है मल्टीप्लेक्सिंग। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें देखो मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं, multiplexing is the set of techniques that allows the simultaneous transmissions of multiple signals across the single data link। तो इसमें क्या है कि हम लोग का मल्टीप्लेक्सिंग में क्या है, हम लोग का मल्टीपल डिवाइसेस है, हम लोग का मल्टीपल डिवाइसेस प्रेजेंट है। तो ये मल्टीपल डिवाइसेस क्या होगा, सिग्नल सेंड करेगा। अब ये जो है मल्टीपल सिग्नल्स क्या होगा, एक मार्क्स मार्क्स होगा, उस मार्क्स के अंदर क्या होगा, उस मार्क्स से जाएगा, साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन होगा एक सिंगल लिंक के वजह से, एक सिंगल लिंक के ऊपर। मींस मल्टीपल डिवाइसेस जो प्रेजेंट है, इधर मल्टीपल डिवाइसेस हम लोग का क्या होगा, मल्टीपल डिवाइसेस प्रेजेंट होगा, और ये मल्टीपल डिवाइसेस क्या है, मल्टीपल सिग्नल सेंड करेगा। और ये जो मल्टीपल सिग्नल्स है उसका मल्टीप्लेक्सिंग होगा। मींस मार्क्स जो है, मार्क्स हम लोग जानते हैं, फ्रॉम मार्क्स क्या करेगा, उस सिग्नल्स को हम लोग का एक सिंगल लिंक में, एक सिंगल लिंक में उसको लेके आएगा और उसको रिट्रांसमिशन करेगा। एक तो देखो इसमें क्या है, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, इसमें इसका इसमें आया, और डीमार्क्स जो है ये सिग्नल्स को क्या है फिर से मल्टीपल सिग्नल्स में कर देगा। तो यही क्या है कि मल्टीप्लेक्सिंग जो है ये एक टेक्निक है, ये एक टेक्निक है that allows the simultaneous transmissions of multiple signals across a single data link। तो एक सिंगल डेटा लिंक के ऊपर मल्टीपल सिग्नल्स जो है उसको हम सेंड कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या होगा, उसको हम लोग इसमें सेंड करेंगे ये चैनल के थ्रू। यही हम लोग का मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो कि डिवाइसेस ऑन द लेफ्ट, all the devices that present in the left, their transmission stream to the multiplexer, all the devices that are present, it transmission stream to the multiplexer, means multiple signals
are gone to the multiplexer, and this multiplexer will, what this multiplexer will do, this multiplexer will combine them into single stream. Means in the single link this should be go, so that's why it will combine all the signals from the these devices. It will combine them into single stream. Means many to one, we already know that from many to one it converted it and sharing the capacity of the link. So ये क्या करेगा कि मल्टीपल डिवाइसेस से जितना सिग्नल्स आएगा ये मल्टीप्लेक्सर के पास, मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, वो सब सिग्नल्स को क्या होगा, सब सिग्नल्स को एक ही सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेगा, एक ही सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेगा, और उसको क्या है, उस सिंगल डेटा लिंक से ट्रांसमिशंस करेगा, उस सिंगल डेटा लिंक से क्या करेगा, उसको ट्रांसमिशंस करेगा। और ये राइट साइड में क्या होगा, ये राइट साइड में रिसीविंग एंड क्या होगा कि डीमल्टीप्लेक्सर है, ये रिसीविंग साइड में मेरा क्या है, डीमल्टीप्लेक्सर है। तो डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, उस सिंगल स्ट्रीम जो है कि सिंगल स्ट्रीम जो इसको मल्टीपल को सिंगल स्ट्रीम में ट्रांसमिशन किया था, क्योंकि उसको क्या है सिंगल डेटा लिंक से जाना है, तो इसीलिए क्या है वो क्या किया था कि उसको हम लोग का मल्टीपल स्ट्रीम, मल्टीपल जो सिग्नल्स था उसको सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिए थे, क्योंकि उसको सिंगल डेटा लिंक से ट्रांसमिशंस करना है। अब रिसीविंग साइड में क्या होगा, एक डीमल्टीप्लेक्सर प्रेजेंट होगा। सो इन रिसीविंग साइड a demultiplexer will be present, and what it will do, it separate that single stream, it will separate this single stream back into the component transmission, and means one to many, and directs them to their intended receiving devices। तो ये क्या करेगा, वो सिंगल स्ट्रीम को क्या होगा, फिर जो जो ओरिजिनल ट्रांसमिशंस था, ओरिजिनल ट्रांसमिशंस ऑफ सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लेगा, और जिसके पास ये सिग्नल्स जाना था, जिस डिवाइसेस के पास, उस डिवाइसेस के पास वो सेंड कर देगा। यही मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है कि मल्टीपल सिग्नल्स जब डिवाइस से आएंगे तो मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, उस जितना सिग्नल्स था उसको कॉम्बाइन कर लेगा। क्यों, क्योंकि उसको एक सिंगल डेटा लिंक से जाना है, तो इसीलिए क्या है मल्टीपल सिग्नल्स को वो कॉम्बाइन कर लेगा सिंगल स्ट्रीम में। एट बट रिसीविंग साइड में क्या होगा, रिसीविंग साइड में ऐसे हम लोग एक डीमल्टीप्लेक्सर प्रेजेंट है जिसका काम होगा ये सिंगल जो स्ट्रीम है उसको फिर डिवाइड करके जो ओरिजिनल हम लोगों का जो सिग्नल्स था उसमें ले आने का, और उसके बाद क्या होगा, जो जो डिवाइसेस में उस सिग्नल्स को जाना था उस डिवाइसेस के पास ये सेंड कर देगा। तो यही मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। अब मल्टीप्लेक्सिंग जो है, मल्टीप्लेक्सिंग को हम लोगों का दो टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग है, एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग, डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग। एनालॉग जो है, analogs are of two types, FDM and WDM. FDM means frequency division multiplexing, and WDM means wavelength division multiplexing. And in case of digital, it is TDM. तो हम लोग का मल्टीप्लेक्सिंग जो है दो पार्ट में डिवाइड है हम लोग का, एनालॉग और डिजिटल में। तो एनालॉग के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, FDM एंड WDM, और डिजिटल के अंदर पढ़ते हैं TDM। FDM stands for frequency division multiplexing, and WDM stands for wavelength division multiplexing, and TDM stands for time division multiplexing। तो ये जो है, ये जो मल्टीपल्स है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, देन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये हम लोग इसका जो डिफरेंस है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसका काम क्या है। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, तो यही आज तक यही क्लास का हम आज देखेंगे। तो किसी का अगर कोई जगह में कोई प्रॉब्लम्स है तो पूछ सकते हो, और साथों साथ एक काम करो कि जो अटेंडेंस देना है इसको अटेंडेंस दे दो तुम लोग का, QR कोड स्कैन करके।
तो सबका क्लियर है? कई जगह में कोई क्वेश्चंस नहीं है? डॉली, रूपम, लीना, Yes, sir. Clear. अच्छा, प्रीति सरकार, प्रीति, क्यूआर कोड स्कैन हो जाने के बाद बोलना। और इन द मीन टाइम अगर किसी का कोई जगह में कोई ये लगे तो पूछ सकते हो। So everyone have scanned the QR code? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So I think there's, if anyone has any question. Haven't No, scanned sir. it yet, sir. Hmm? No, sir. अभी तक स्कैन नहीं किया सर। अच्छा ठीक है, जल्दी करो स्कैन। So okay, then I am ending the session. So thank you everyone. Thank you, sir.